Hello everyone, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. In this video today, we are going to talk everything about 3 years and 5 years program of law from Banaras Hindu University, which is also called BLAT and LLB honors. So I would urge you to watch the video till the end so that you do not miss out any point which is being discussed today in this video, which is relevant with regards to your BLAT and LLB 3-year program. So before we proceed any further, the admissions are open for our 1-year and 2-year programs. For more information, you can log on to www.lawentranceindia.com, and for more information and query regarding anything, you can call us on 9971444054. You can also avail our 15 days free trial program wherein you will get all these facilities which has been talked about, which is live classes with one-on-one interaction, recorded conceptual videos, topic tests, sectional tests, and detailed analytics of your performance. To do that, you can find the link in the description below, locate sign up for 15 days program and fill the form and you are all set. So hurry up because we have limited seats for the students. For more information, call us as soon as possible so that you do not miss out your chances of studying with us. You can also join our Telegram channel wherein we post everyday questions which is related to CLAT and other law entrance examination. To join our Telegram channel, you can visit our website. There is a link there. You can click on the link and you are set. So आइए हम जानते हैं बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि स्टैब्लिश किया गया था माननीय पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा सन 1916 में. You can see some of the pictures on the screen, which is this is the main gate of Banaras Hindu University, and this is its law faculty, and this is the library of Banaras Hindu University, and this is one of the classrooms of law faculty. So चूँकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इतना फेमस है एंड इसकी जो मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग एंड सारे कोर्सेज इतने ज़्यादा फेमस है दैट एवरी स्टूडेंट्स वांट टू एटलीस्ट गो एंड एनरोल देयर एंड स्टडी इन BHU, दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली इसके लॉ फैकल्टी के बारे में. इसमें और भी जो भी प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यू कैन लॉग ऑन टू इट्स वेबसाइट and get details of every course of Banaras Hindu University, but this video is totally dedicated to only law faculty of Banaras Hindu University. So let us discuss about its law faculty. So the faculty of law is one of the first faculties in Banaras Hindu University, which was established in 1922. It basically offers 3 courses in legal education, which are undergraduate program, which is BA LLB and LLB honors. BA LLB is for 5 years and LLB is for 3 years. इसकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. It has also post graduation program for law, that is LLM. It also provides for doctorate courses which are PhD in law. It has also facility of joining some diploma in law as well. अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो जनरली स्टूडेंट्स के मन में आता है. वो हमें रीच आउट करते हैं, पूछते हैं दैट सर BHU ब्लैट क्या होता है, LLB क्या होता है, 3 ईयर प्रोग्राम क्या होता है, BHU से कैसे किया जा सकता है, एंड सो मेनी क्वेश्चंस. सो देयर आर सम क्वेश्चंस बिफोर यू ऑन द स्क्रीन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BA LLB एंड LLB ऑनर्स. उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में, आप हमारे साथ बने रहें. नेक्स्ट, what type of questions will be asked in BHU LLB entrance exam, ये भी क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएगी आज के बाद से. The third question is what is the marking scheme. मार्किंग स्कीम क्या होती है BHU की, वो किस हिसाब से मार्क करते हैं, कैसे एडमिशन होता है, रैंक्स क्या होता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग टुडे. What subject should I study for BHU and how much should it be, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. In what mode BHU LLB entrance exam is conducted. देखो बेसिकली क्या होता है, ऑफलाइन होता है. ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जिसका अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला हुआ है. And we have so many queries that we are going to answer today. So watch the video till the end so that you do not miss out on any information. So ये वीडियो बेसिकली डेट्स को नहीं कंफर्म करेगा क्योंकि आज की डेट तक कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है.
हम आज बात करने जा रहे हैं इसके ब्रेकडाउन्स के बारे में, नेचर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, रैंकिंग के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में एंड अदर थिंग्स के बारे में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन डेट्स एंड अदर थिंग कीप विजिटिंग bhu.ac.in along with bhuonline.in। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो बेसिकली BHU को सर्च करते हैं जिसमें www.bhu.ac.in है। ये विश्वविद्यालय का मुख्य वेबसाइट है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, वो नर्सरी से लेके PhD प्रोग्राम्स के लिए भी अगर आपको अप्लाई करना है या किसी भी तरह के कोर्स में अप्लाई करना है, सो यू हैव टू विजिट www.bhuonline.in, जिसका कुछ पेज इस तरह से दिखाई देता है। एंड दिस इज इट्स मेन वेबसाइट जिसमें यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई आई थॉट टू इनकॉर्पोरेट दिस इंफॉर्मेशन दैट इट हैज़ टू वेबसाइट, वन इज फॉर एप्लीकेशन एंड अदर फॉर जनरल। सो आइए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि BHU से अगर आपको 5 ईयर का लॉ प्रोग्राम करना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नंबर कितने होते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मार्किंग थीम क्या होती है एंड ऑल दोज थिंग। सो 5 ईयर के प्रोग्राम को बेसिकली ब्लैट के नाम से जाना जाता है और इसे BA LLB के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये वर्ड ब्लैट जो है वो वेबसाइट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है BHU लॉ एडमिशन टेस्ट। BHU ने 5 ईयर के प्रोग्राम को 2014 से स्टार्ट किया हुआ है और ये इसका 8वां सेशन होगा इस साल जब आप एडमिशन लेंगे। सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बेसिक, सो दैट यू कैन फिल द फॉर्म। एक स्टूडेंट जो 12+2 में अपियरिंग हो रहा है या पास हो चुका है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें वेबसाइट में साफ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एनी स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी इज नॉट एलिजिबल। फॉर जनरल कैटेगरी 50% इज रिक्वायर्ड। आप 50% मार्क्स से 12th को पास करेंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर OBC इट इज 45% एंड फॉर SCs एंड STs इट इज 40%। देयर इज ऑल्सो एज बार। अगर कोई स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है वो 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई को जिस सेशन में वो एडमिशन ले रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई स्टूडेंट OBC और SC और ST से बिलोंग करता है तो वो 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप LLB 5 ईयर प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं तो। BA LLB प्रोग्राम जो कि एक 5 ईयर प्रोग्राम होता है जिसे हम ब्लैट के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके अवेलेबल हैं आपके bhuonline.in पर, जिसे आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम का मीडियम जो होता है देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। हालांकि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू आर इनरोल्ड इन BHU, जब आपकी एडमिशन हो चुकी है, दैट इज गोना बी टोटली इन इंग्लिश। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है आप डाउनलोड करके भी दे सकते हैं, दैट इज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। एग्जाम मोड के बारे में बात करें तो हमेशा ऑफलाइन होता है, बट द सिचुएशन इज अनफोर्सीन, तो कुछ भी हो सकता है। सो देर आर चांसेस दैट दे कैन टेक दिस एग्जामिनेशन ऑनलाइन टू। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे आ जाएगी। एग्जाम का ड्यूरेशन बेसिकली 2 घंटे का होता है। सो बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 होते हैं, टोटल मार्क्स 450 होते हैं। मार्किंग स्कीम बेसिकली 3 मार्क्स होते हैं जो कि 1 करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं। अगर आप इनकरेक्ट कर देते हो तो -1 आपका डिडक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं किया हुआ है सो दैट इज यू गेट 0 ऑब्वियसली। इसकी जो टोटल इनटेक है वो 60 सीट्स हैं। सो ये सीट्स बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू जितने स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। सो मेक श्योर दैट देयर इज अ टफ कंपटीशन, सो यू नीड टू प्रिपेयर हार्ड। आइए अब हम बात करते हैं BHU के 3 ईयर प्रोग्राम के लिए, जो कि बेसिकली एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए होता है, जो कि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। वो BTech हो सकता है, वो BA, BSc, BCom, किसी भी स्ट्रीम से वो ग्रेजुएट होना चाहिए। BHU का जो 3 ईयर प्रोग्राम है ये बहुत ही पुराना प्रोग्राम है, जिसे बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम माना जाता है। ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट के मन में सपना होता है कि काश मैं BHU से पढूं, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ के जो फैकल्टी है वो बहुत ही रिनाउंड होते हैं। सो आइए अब हम बात करते हैं BHU के 3 ईयर लॉ प्रोग्राम के बारे में, जिसे LLB ऑनर्स के नाम से जाना जाता है। ये 1922 में इस्टेब्लिश किया गया था। सो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही
ऑलमोस्ट 100 ईयर्स होने वाले हैं अगले साल इस प्रोग्राम को, और यहाँ से हर साल बच्चे पढ़ के निकलते हैं एंड दे गेट सेलेक्टेड इन गुड कंपनीज, दे ऑल्सो गो फॉर जुडिशरी एंड अदर जॉब्स विच इज रिलेवेंट टू लॉ, एंड वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं. लेट मी टेल यू, बिकॉज आई माई सेल्फ एम फ्रॉम वाराणसी एंड आई नो about this university and how prestigious it is to study in that university basically. So इसकी eligibility के बारे में बात करते हैं. आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए. ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म को, और आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए इफ़ यू वांट टू फिल द फॉर्म. अदरवाइज जैसे ही आप फॉर्म फिल करना शुरू करोगे यू विल बी डिनाइड टू एक्सेप्ट इफ़ यू आर नॉट पास्ड विथ 50% बेसिकली. इसे LLB ऑनर्स के नाम से जाना जाता है. 3 ईयर का प्रोग्राम होता है बेसिकली ये. अच्छी खबर ये है कि दैट इट हैज़ ऑल्सो प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्म में और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. एग्ज़ाम का मीडियम जो होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है. एग्ज़ाम जो मोड होगा वो ऑफलाइन होता है आ रहा है, बट ऑनलाइन के भी चांसेस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की होगी, जिसमें आपको 120 मिनट मिलेंगे ऑब्वियसली, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. टोटल मार्क्स जो होते हैं 450 होते हैं, और LLB प्रोग्राम में जो कि ग्रेजुएशन के बाद है उसमें 230 सीट्स हैं. सो आप देख सकते हैं कि सीट्स काफ़ी अच्छे हैं. सो यू कैन प्रिपेयर हार्ड. Once you get selected in BHU, you will say yes, I have made it there. मार्किंग स्कीम जो है इसकी सेम ब्लैट की तरह है, जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर अ करेक्ट आंसर, एंड फॉर एन इनकरेक्ट आंसर यू गेट -1 डिडक्टेड, एंड इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन यू गेट 0. ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं उन एरियाज की जिसमें दोनों ही एंट्रेंस में टेस्ट किए जाते हैं. सबसे पहले आपका लीगल एप्टीट्यूड, जिसे लीगल रीजनिंग भी कह सकते हैं, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए. सो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करो, जस्ट डाउनलोड द प्रीवियस ईयर पेपर. 2020 के पेपर तो अवेलेबल नहीं है, दैट यू कैन फाइंड इन अनदर वेबसाइट एज वेल, बट हालांकि BHU में 2019 तक के पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसके वेबसाइट पे. सो लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें आपके लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC एंड बहुत सारे लॉ के क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस, जो कि करंट अफेयर है. प्रीडोमिनेंटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पेपर का, सो यू कैन नॉट डिनाई दैट. इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो कोई भी स्टूडेंट जो कि क्लैट के लिए तैयारी करता है, एलेट के लिए तैयारी करता है, या 3 ईयर प्रोग्राम के लिए आप DU के लिए तैयार करते हो, यू नो ऑब्वियसली दैट इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी आते हैं वहाँ पर. एंड देन मेंटल एबिलिटी, जिसे मैथ कहते हैं, एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करी जाती है. हालांकि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं. सो देर आर 4 एरियाज दैट आर बीइंग टेस्ट इन बोथ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिव ऑफ ब्लैट और LLB 3 ईयर प्रोग्राम. सो आइए अब हम बात करते हैं ब्रेकडाउन के बारे में. सो ब्रेकडाउन जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2020 की. बेसिकली 2020 में आपके लीगल एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस आए हुए थे. सो आप देख सकते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड कितना रोल प्ले करता है इस क्वेश्चन पेपर में. देन यू हैव जनरल अवेयरनेस, जिसमें अगेन 40 क्वेश्चन आए हुए थे 2020 में. हालांकि ये नंबर थोड़े कम थे, कुछ ज़्यादा थे इन अदर ईयर्स लाइक 2019 एंड 2018, बट 2020 में 40 क्वेश्चंस लीगल एप्टीट्यूड से एंड जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चंस आए हुए थे. इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से लगातार 4 सालों से 30 क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं. एंड देन मैथ्स और रीजनिंग के कुल मिला के 40 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं. सो देयर आर 150 क्वेश्चंस बिफोर यू विच यू हैव टू अटेम्प्ट इन 120 मिनट्स. सो अभी से ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो अगर आप आने वाले सालों में ब्लैट में एडमिशन लेना चाहते हैं, एंड BHU के 3 ईयर प्रोग्राम में ग्रेजुएट के स्टूडेंट जो प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर दैट. Okay, so let us talk about last year cutoff of BA LLB and LLB honors respectively. So यहाँ पे जो numbers लिखे गए हैं they are for BA LLB, and यहाँ पे जो numbers लिखे गए हैं they are for LLB honors. So for general category students जो होते हैं वो BA LLB के लिए last year का जो cutoff गया था वो 316 गया था. So you can assume that 360 was the highest cutoff. For OBC non-creamy layer 266 was the cutoff in BA LLB, and 213 for SC and
27 फॉर ST कैटेगरी। एंड LLB ऑनर जो कि 3 ईयर प्रोग्राम होते हैं उसको 228 जो होते हैं वो कट ऑफ लास्ट ईयर थे, 195 थे OBC नॉन क्रीमी स्टूडेंट्स के लिए। SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 148 कट ऑफ गया हुआ था लास्ट ईयर एंड ST के लिए 52 ही था। सो इस बेस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए सो दैट यू कैन इनरोल इनटू लॉ प्रोग्राम of any stream of 5 year or 3 year, but you have to make sure आपको अपने आप को ये ध्यान देना होगा कि आपके एटलीस्ट टारगेट क्वेश्चन जो होने चाहिए वो बिटवीन 120 टू 130 के बीच में होना चाहिए। अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर देते हो सो यू कैन इंश्योर योर एडमिशन इन BHU। ऑलराइट, सो हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ की रैंकिंग के बारे में। NIRF विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ को 2020 में रैंक किया था 19 जो कि आउट ऑफ 20 है। अगेन नेल्सन रैंकिंग 2021 इंडिया टुडे जो ऑर्गेनाइज करता है उन्होंने रैंक किया है BHU फैकल्टी ऑफ लॉ को 5, सो विच इज़ क्वाइट गुड फॉर यूनिवर्सिटी। सो आप समझ सकते हो इन दैट वे कि इसकी जो रैंकिंग है वो बहुत ही अच्छी है एंड दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के अकोमोडेशंस की, जो कि हॉस्टल फैसिलिटी है। यहाँ पे बेसिकली 3 हॉस्टल्स हैं जो बॉयज़ के लिए हैं, डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल, चाणक्य हॉस्टल एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्टल। ये बॉयज़ के लिए हैं बेसिकली। एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ अ त्रिवेणी हॉस्टल विच इज़ एन अमलगमेशन ऑफ 6 हॉस्टल्स। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैगिंग टॉलरेट नहीं किया जा सकता। सो यू कैन अश्योर योर सेल्फ कि वहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती है एंड दैट इज़ जीरो टॉलरेंस। दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स, क्योंकि बच्चा जब 12th क्लास में होता है सो ही माइट बी थिंकिंग कि व्हेन आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी हाउ एम आई गोइंग टू बी ट्रीटेड। सो फॉर यू इट इज़ अ गुड न्यूज़ दैट नो रैगिंग इज़ देयर एंड इट इज़ नेवर एनकरेज्ड इन फ्यूचर टू। सो इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, सो जब आप www.bhuonline.in पे लॉग ऑन करते हो सो आपके सामने ये पेज खुल के आता है। व्हेन यू स्क्रॉल इट डाउन यू विल फाइंड कैटेगरी वाइज पेपर्स टू बी डाउनलोडेड, जिसे आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप प्रिंट करा सकते हो। देखो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब आप तैयारी करते हैं सो इट इज़ श्योर कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगाना चाहिए। इन दैट वे यू गेट सम फेयर आइडिया अबाउट व्हाट areas to be tested and how many marks are there, how many questions are asked from particular section. In that way आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। Needless to say, इसलिए I would recommend you to download papers going to the website of BHU. So with this information I would like to say all the best to all the aspirants who want to go into BLAT or LLB 3-year program. किसी भी और इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन रीच आउट टू मनु लॉ क्लासेस। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको पूरे डिटेल्स एडमिशन प्रोसेस और अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। उसके साथ ही साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड क्लासेस फॉर CLAT, ALET and other law entrance examinations. So for sake of that you can enroll with us, you can call us for more information. With these words I would like to say thank you so much for watching the video till the last. For any query you can contact us at 9971444054. You can also visit our website that is lawentranceindia.com. You can also join our telegram channel जिसमें कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम बहुत सारे questions देते हैं जिसमें आपकी प्रिपरेशन को एस मिलेगा and needless to say that is free of cost. And साथ ही साथ I would like to say that it is the time of pandemic, so you have to ensure that you are following proper instructions provided by Government of India. आप खुद को भी स्वस्थ रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें and follow all the instructions which are being given by the government. So with this word I would like to say thank you so much for watching the video till the end. Have a nice day.